Welcome to online classes. Today we shall discuss on the first lesson of prose. The first lesson of the prose is a girl with a basket and it has been written by William C. Douglas. William C. Douglas was the judge of Supreme Court of America. We shall discuss this lesson by 5 points. First, author's purpose and journey. Second, natural scene. Third, the refugee children. Fourth, a friend refugee girl and her respected author's feeling regarding India. ओके, तो फिर से पूरे पांचों बिंदुओं को ध्यान से देखें, फिर हम आपको इसको डिस्क्राइब करते हैं और समझते हैं कि इस लेसन में विलियम सी डगलस ने हमें क्या समझाने का प्रयास किया है। बिंदुवार हम लोग इस लेसन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमने आपका बिंदु डाला ऑथर्स पर्पज एंड हिज जर्नी। You know, William C. Douglas had been a judge to the Supreme Court of the United States of America. He visited in India in 1950 after the independence of the country. At that time, Indian people were facing the problem of refugees and communal rights. He wanted to get the direct knowledge about the feelings and reaction of the people against the official reports. That is why he started his journey from Delhi to Ranikhet via Bareilly by a passenger train as well as by car. The passenger train stopped at each station. The stations were crowded with different type of people such as priest, Sikh, Hindu, Muslim, Christian, porters, beggars, etc. इसके बाद हम आपको हिंदी में भी समझाते हैं कि विलियम सी डगलस जो इस लेसन के राइटर हैं, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे। भारत की आज़ादी के बाद सन 1950 में वे भारत आए। उस समय भारत शरणार्थियों की समस्या और सांप्रदायिक दंगे से बुरी तरीके से जूझ रहा था। विलियम सी डगलस लोगों का कार्यालय के प्रति दृष्टिकोण, आज़ादी के प्रति दृष्टिकोण क्या है, इसके विषय में अच्छी तरीके से जानना चाहते थे, उनकी भावनाओं के विषय में जानना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने दिल्ली से रानीखेत तक की यात्रा बरेली होते हुए ट्रेन से की। जब वो ट्रेन से यात्रा करते हैं तो वे प्रत्येक स्टेशन पर रुकते हैं। स्टेशन विविध प्रकार के लोगों से भरे थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कुली, भिखारी, और प्रयास करते हैं लोगों से बातचीत करने का ताकि वे भारत की आत्मा के विषय में अच्छी तरीके से जान सकें कि भारत के लोग अपने आज़ादी के विषय में क्या सोचते हैं। The second point, natural scene or natural phenomenon. You know, William C. Douglas was passing by a passenger train. The train was passing through a very fertile lands of the plain of the Ganga river. You know, Ganga is the largest river of India. The area was full of trees and high grasses. In the jungle or in the high grasses, many living beings like tigers, elephants, cobras lived there. It was their houses. The village houses were built with mud, grass and bamboo. The monkeys were wandering on the station in search of food. At that day, when William C. Douglas was traveling, the pumpkin beds grew over all the huts. Okay. Third point, the refugee children. During his journey, the writer used to get down at the platforms and wanders on the platform. At one station, as soon as he got down at the platform,
A group of refugee children gathered around him. All the refugee children were selling fans and baskets. Their baskets and fans were hand woven. The writer bought some baskets, fans from them. You know, in 1947, the partition of India was decreed between two nations, India and Pakistan. That is why, due to religious fanatism, a lot of people had come to India from Pakistan as refugees. And the children who came from Pakistan were selling fans, baskets, etc. इसको थोड़ा हम लोग हिंदी में भी देखते हैं ताकि आपको समझ में भी आए कि हम जो बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है। दोनों को डिस्क्राइब करते हैं, नेचुरल सीन को और रिफ्यूजी चिल्ड्रन को। आज विलियम सी डगलस जिस ट्रेन से रानीखेत के लिए यात्रा कर रहे थे, वो जो एरिया था वह गंगा का ऊपरी मैदानी भाग था, बड़ा ही उपजाऊ एरिया था। लेकिन आज बाढ़ भी वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में आई हुई थी और हजारों एकड़ चावल की भूमि को डुबाई हुई थी। उधर के एरियाज पेड़ से ऊंची ऊंची घासों से भरे पड़े थे। जो ऊंची ऊंची घास थे, जंगल थे, वहाँ बहुत सारे जीवित प्राणी जैसे बाघ, हाथी, कोबरा, अजगर, ये सब रहते थे। जिस गांव से होकर के आज उसकी ट्रेन गुजर रही थी, वहाँ के सारे घर झोपड़ियों के बने हुए थे। स्टेशन पर देखें तो ढेर सारे बंदर भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। कुछ बंदर उनके बच्चे पेड़ों पर झूल रहे थे और आज सारी झोपड़ियों पर कद्दू की जो लताएं थी वो खिली हुई थी। देखने में बड़ा ही मनोहारी और सुंदर दृश्य लगता था। जहाँ तक रिफ्यूजी चिल्ड्रन की बात है, आपको मालूम है जैसा कि हमने बताया कि लेखक एक पैसेंजर ट्रेन से यात्रा कर रहा है और अपनी यात्रा के दौरान वह हर स्टेशन पर उतरता था, स्टेशन पर इधर उधर घूमता था और जो भी इंग्लिश बोलने वाले लोग होते थे उनसे वह देश के मामलों के विषय में, ऑफिशियल रिपोर्ट के विषय में बातचीत करता था। लेकिन एक स्टेशन पर जैसे ही वह उतरता है, ढेर सारे बच्चों का समूह उसे घेर लेता है। सब शरणार्थी बच्चे थे, वे टोकरियां बेच रहे थे, हैंड्स हाथ के बने हुए पंखे बेच रहे थे और चाहते थे कि लेखक उनकी टोकरियों को, उनके पंखों को खरीद ले। आखिर थे ये रिफ्यूजी कौन? 1947 में जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन की घोषणा कर दी गई तो धार्मिक उन्माद के भय के कारण लगभग 9 मिलियन पीपल पाकिस्तान छोड़ दिए और शरणार्थी के रूप में भारत पहुंच गए। The fourth point, a refugee girl and her respect. एक शरणार्थी बच्ची और उसका सम्मान है। The writer says that there was a beautiful girl of 9 among those refugees. She wanted that the author should buy her basket, but the writer did not like to buy any more baskets. She implored him in her sweet voice. She had tears in her eyes. The writer took pity on her condition. So he took out 50 cents from his coat pocket and put it in her basket and made it clear that he had no more basket and he was given 15 cents as free financial help after that. But the little girl did not accept this amount and returned with precious hand of half money. यहाँ कहने का मतलब है इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग रिफ्यूजी गर्ल एंड हर रिस्पेक्ट में कि अपनी यात्रा के दौरान एक स्टेशन पर ढेर सारे शरणार्थी बच्चों ने उसे घेर लिया। उन शरणार्थी बच्चों में एक 9 साल की बालिका भी थी जो अपनी टोकरी को
हर हाल में किसी भी कीमत पे, किसी भी अमाउंट पर लेखक को बेच देना चाहती थी। वह मधुर स्वर में गिड़गिड़ा रही थी, याचना कर रही थी, उसके आंखों में आंसू भरे हुए थे। जब उसकी दयनीय स्थिति को लेखक ने देखा तो उसने अपने जेब कोट के जेब से 15 सेंट निकाला और उसकी टोकरी में डाल दिया और साथ ही साथ यह समझाने का प्रयास किया कि मुझे किसी टोकरी की आवश्यकता नहीं है, मैं यह 15 सेंट तुम्हें एक फाइनेंशियल हेल्प के रूप में या दान स्वरूप दे रहा हूँ। लेकिन लड़की आत्मसम्मान से भरी हुई थी, वह दान के पैसे को नहीं चाह रही थी। उसने बड़े ही नजाकत के साथ, बड़े ही विनयशीलता के साथ जितना भी पैसा 15 सेंट लेखक ने दिया था उसने उसे वापस कर दिया। ठीक पॉइंट है ऑथर्स फीलिंग रिगार्डिंग इंडिया। विलियम सी डगलस, who was the judge of Supreme Court of America, was much influenced by the behavior of the little girl because he did not accept the money as a charity. Now there was no other way left than purchasing the basket. At last the writer bought the basket. When the writer bought her basket, then she accepted the money. She wiped her tears, smiled, and went towards her hand. But her behavior had a deep effect on the mind of the writer. During his visit of India, William C. Douglas found the people of India having a great sense of self-respect and perfect citizenship because they loved India and independence. All the people of India were very kind and hospitable. At the end of the lesson, when William C. Douglas met the Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru, he narrated the story of the refugee girl and also told him that her innocent behavior had showed him the warm soul of India. कहने का मतलब है कि विलियम सी डगलस लड़की के व्यवहार से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। जब लड़की ने उनके दान का पैसा ठुकरा दिया तो उनके पास कोई और चारा नहीं बचा कि वो टोकरी को ना खरीदे। मजबूर होकर के उन्होंने टोकरी खरीद ली। लड़की ने पैसा तब स्वीकार कर लिया। वह अपने आंसुओं को भी पोंछी, वह मुस्कुराई और खुशी खुशी अपने घर चली जाती है क्योंकि उसे लगता है कि आज उसे और उसके परिवार को भर पेट भोजन मिलेगा। लेकिन यह बात लेखक के मन को छू गई थी। अपनी यात्रा के दौरान लेखक ने बहुत सारे भारतीयों को देखा, बहुत सारे भारतीयों से मिले, लेकिन सभी जितने भी भारतीय थे सब आत्मसम्मान से भरे थे, सब में नागरिकता की भावना प्रबल थी। वे लोग विनम्र थे, वे लोग उदार थे। और लेसन के अंत में वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलते हैं और अपनी उस कंडीशन, अपनी उस कहानी को भी बताते हैं कि किस तरीके से एक रिफ्यूजी लड़की मिली और उस लड़की ने उसे इतना ज़्यादा प्रभावित कर दिया कि वे भारत से अत्यधिक प्रेम करने लगे क्योंकि उस लड़की ने उन्हें भारत के आत्मा की एक झलक दिखला दी थी। ये 5 बिंदु हैं। आपको इन बिंदुओं को बार बार रिपीट करके वीडियो को देखना है ताकि आपको ये लेसन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इसी पर बेस्ड मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा और आपको उन 5 प्रश्नों को अच्छी तरीके से लिखना है और फिर मैं आपको उस प्रश्न पर डिस्कस भी करूंगा। अब आइए मैं बोर्ड पर 5 क्वेश्चन लिखता हूँ। There are 5 questions on this whiteboard and you have to solve all the 5 questions. First question. Describe the thing and scene the writer saw on his way from Delhi to रानीखेत। दिल्ली से रानीखेत तक के मार्ग में लेखक ने जो वस्तुएं और दृश्य देखे उनका वर्णन करो। दूसरा, How was the author's routine of talking with people interrupted?
सेकंड क्वेश्चन फिर से देखें, हाउ वाज द ऑथर्स रूटीन ऑफ टॉकिंग विद पीपल इंटरप्टेड, लोगों से लेखक के बातचीत करने का सिलसिला किस तरीके से बाधित हुआ, इंटरप्टेड में से बाधित। थर्ड, हु वेयर द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट, टोकरी बेचने वाले ये बच्चे कौन थे। व्हाट इंफॉर्मेशन डज द राइटर गिव यू अबाउट देम, लेखक उनके विषय में आपको क्या जानकारी प्रदान करता है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द राइटर डू टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ नेशन, लेखक ने राष्ट्र की नब्ज को पहचानने के लिए क्या किया। यहाँ देखिए पल्स माने नब्ज। व्हाट वाज द प्लाइट ऑफ द रिफ्यूजीज, शरणार्थियों की दुर्दशा क्या थी। What were they doing for their living, वे अपनी जीविका के लिए क्या कर रहे थे। ये 5 क्वेश्चन हैं, आपको इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। कल हम लोग फिर मिलेंगे, इन 5 प्रश्न पर डिस्कस करेंगे, आंसर बताएंगे, लिखाएंगे आपका, और जो सबसे महत्वपूर्ण पैराग्राफ होगा उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड नाइट।